سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت کی بہت ساری جہاں پہ اصلاحات ضروری ہیں، وہاں یہ بھی ایک اصلاح بہت ضروری ہے کہ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ قسم اٹھا لیتے ہیں۔ بہت ساری، کوئی اللہ کی قسم کھا لیتا ہے، کوئی قرآن کی قسم اٹھا لیتا ہے، کوئی اپنے بچوں کی قسم اٹھا لیتا ہے، کوئی اپنے والدین میں سے ماں یا باپ کی قسم اٹھا لیتے ہیں ہم۔ اور یہ قسم اٹھانا کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم یا تو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، یا ہم بعض اوقات اپنا مال بیچنے کے لیے، اپنا سودا سیلف بیچنے کے لیے، اپنا کاروبار چلانے کے لیے قسم اٹھا لیتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے اوکیزنز پر ہم کوئی کمٹمنٹ کرتے ہوئے، کوئی ٹائی اپ کرتے ہوئے، کوئی ایگریمنٹ کانٹریکٹ کرتے ہوئے، یا اس کانٹریکٹ کو اپنی فیور میں لینے کے لیے بھی لوگ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہ تو ڈیل، وہ تو بات ایسے ہوئی تھی، میں قسم اٹھاتا ہوں۔ I'm sorry، میری زبان زیب نہیں دے رہی کہ میں بار بار وہی الفاظ دہراؤں، لیکن لوگ اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں، قرآن کی نہیں۔ قسم نہیں اٹھانی چاہیے، قسم نہیں اٹھانی چاہیے، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ بس جان پہ کوئی بہانہ آئے واقعی کوئی، تو اپنی صداقت کو بتانے کے لیے اگر آپ اٹھا لیں تو کوئی بات نہیں، لیکن نہیں اٹھانی چاہیے۔ میں اس بات کے حق میں نہیں، آپ کو بھی یہی تعلیمات دے رہا ہوں کہ خدا را قسم نہ اٹھایا کریں۔ بھائی آئی سویئر اللہ سبحانہ تعالیٰ، آئی سویئر قرآن پاک، نو یو شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ دیٹ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بتا دیتا ہوں۔ بھائی جب میں نے اللہ کی قسم اٹھائی تو اب اس قسم کا، جو میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بات میں، اپنے قول میں، اپنی یاداشت میں، اپنے کردار میں، اپنے عمل میں اتنا ہی سچا ہوں جتنا کہ اللہ اپنی ذات میں سچا ہے۔ ہائے استغفر اللہ العظیم، آپ اور میں کبھی بھی اتنے سچے نہیں ہو سکتے، بلکہ پوری دنیا کی انسانیت مل جائے تو نہیں ہو سکتی۔ اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم، یعنی جس طرح اللہ اپنی ذات میں سچا ہے، میں اس طرح سچ بول رہا ہوں۔ قرآن کی قسم، بھئی جس طرح قرآن اپنے تمام الفاظوں میں، تمام کانسٹیٹیوشن میں، تمام دین کی باتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں ان میں جس طرح قرآن سچا ہے، وہی سچی ہے، لوح محفوظ سچ ہے، اس طرح میں اپنے قول اور فعل میں سچا ہوں۔ ہائے توبہ، ہم سچے نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ لکھ لیں یہ بات، آپ کے سامنے کوئی شخص کوئی بات کر رہا ہو اور وہ بات کر کے چلا گیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں ہاں جی وہ جو صاحب آئے تھے وہ کیا کہہ کے گئے؟ آپ ان کی بات مجھے لفظ ب لفظ بتا دیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ مفہوم سمجھا دیں گے مجھے کہ ہاں جی وہ یہ کہہ رہا تھا، لیکن آپ اس کے الفاظ نہیں دہرا سکتے،
कहीं ना कहीं अल्फाज में, जुमलों में झूल आ जाएगी, आगे पीछे हो जाएगी बात। लफ्ज बा लफ्ज आप नहीं कह सकते। बेशक आपने सच बोला, वो जो पैगाम दे के गया वही पैगाम आपने दिया, लेकिन अल्फाज आपके अपने थे, इसलिए आप इस बात पर भी कसम नहीं उठा सकते। खुदारा कसम ना उठाया करें। हम अल्लाह की ज़ात की तरह सच्चे नहीं हो सकते, लिहाजा हमें अल्लाह की कसम उठानी नहीं चाहिए। कुरान जिस तरह सच्चा है, रब का वो कलाम जिस तरह सच्चा है, हम उस तरह सच्चे हो ही नहीं सकते। माँ बाप की कसम उठा लें कि भाई मेरे माँ बाप तो मुझे बहुत मोतबर हैं, वो जिस तरह अच्छे और सच्चे लोग हैं, मैं उनकी तरह कैसे हो सकता हूँ? मैं तो बेटा हूँ। मैं जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो जाऊं, जितना मर्जी कारीगर हो जाऊं, स्किल्ड मेरे पास हो, स्किल्स हो, मेरे पास एजुकेशन हो, मेरी प्रैक्टिस हो, मेरा नॉलेज हो, फिर भी मैं अपने बाप से बड़ा नहीं हो सकता, अपने बाप से ज्यादा सच्चा नहीं हो सकता। बच्चों की लोग कसम उठा, मासूम बच्चे, लोग अपना सौदा बेचने के लिए अपनी बात को सच्चा मुझे मेरे बच्चों की कसम, अस्तगफिरुल्लाह। क्यों भाई? बच्चे फालतू हैं? क्यों कसम उठाएं हम? मैं अपने किरदार में, अपने कौल और फेल में इतना सच्चा हूं कि मुझे कसम उठा के बताने की जरूरत नहीं है कि मैं सच्चा आदमी हूं। और अगर मुझे ये प्रूव करना पड़ जाए कि मैं सच्चा आदमी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल है, मैं अभी सच्चा हूं नहीं, मुझे सच्चा प्रूव करना पड़ रहा है। इसका मतलब मेरे किरदार में, मेरे कौल में, मेरे फेल में, मेरे अमलों में, मेरी नीयत में, मेरी गुफ्तार में कहीं ना कहीं कोई झूल है, कोई ना कोई अभी कमजोरी है। लिहाजा खुदारा कोई कसम ना उठाया करें, ना अल्लाह की, ना कुरान की, ना कोई माँ बाप की, ना कोई बच्चों की, किसी की भी, किसी भी किस्म की। ये तो 3-4 तो मैंने नाम ले दिए ना। किसी भी किस्म की कसम ना उठाया करें। ये मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आपको, दरख्वास्त है आपको। हाँ, जिसको समझ आ जाए वो अमल ज़रूर करे। कस्में उठा के अपने आप को सच्चा साबित करना ज़रूरत नहीं है। कस्में उठा के अपने कारोबार को फ़रोग़ देना, चलाना अच्छा नहीं है। कस्में उठा के अपने टाई अप को, अपने कमिटमेंट्स को अपने मतलब का घड़ लेना अच्छा नहीं है। लिहाजा कसम ना उठाया करें। एक छोटा सा वाकया मैंने लॉन्ग टाइम अगो एक आलिम दीन से सुना। वो फरमा रहे थे, गालिबन गालिबन कमी पेशी अल्लाह पाक मुझे भी माफ फरमाए। वो फरमा रहे थे, हुजूर इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को वक़्त के जो बादशाह थे उन्होंने ऑफर की कि भाई आप हमारे पास एज ए काजी, वक़्त के जो सबसे बड़ा काजी है उसकी पोजीशन खाली है, आप उस पोजीशन पर हमारे पास आ जाएं। आपने इनकार फरमा दिया। आपने कहा नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। खैर, मैं बात को मुख्तसर करता हूँ, सिर्फ जो मैंने बात कही उसको समझाने के लिए। तो काफ़ी इसरार किया गया, इधर उधर से प्रेशराइज भी किया गया, तो आपने वो काजी की पोजीशन को कबूल फरमा लिया। हाँ ठीक है, भाई मैं काजी आ। पहला दिन था, पहला केस आया, दो लोगों का आपस में तफरका था, लड़ाई थी, डिस्प्यूट था। एक कहता था जी मैंने इतने पैसे लेने हैं इससे, एक कहता था जी मैंने इसके पैसे नहीं देने। इस बात पर वो लोग काजी के सामने पेश हो गए। अब काजी वक़्त के इमाम हैं, शरीयत को बखूबी जानते हैं। जब उनको पेश किया गया तो बात आ गई, अच्छा भी अब आप लोग कसम उठाएं। कुरान लाया गया, कुरान पर हाथ रखकर कसम उठानी है कि हाँ जी मैं कसम खाता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। अभी
उस शख्स ने, इधर वे दोनों में से किसी एक ने अभी हाथ रखा ही था, अभी उसने कसम उठाने ही वाला था, तो आपने फौरन उसे रोक दिया, भाई ठहरो 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 भी मियाँ, ठहरो ठहरो, 1 मिनट ठहरो, तुम कसम उठाने लगे? उन्होंने कहा जी मैं कसम उठाने। उन्होंने कहा कितने पैसों का डिस्प्यूट है? उन्होंने कहा जी इतने पैसों का। आपने अपनी जेब से निकाल के उतने पैसे दे दिए और उससे कहा कि भाई कसम नहीं उठाना, और उसी दिन इस्तीफा दे के, ये पहले ही एक ही केस सुना, रिजाइन करके घर आ गए। पूछा गया आपसे कि जी हजूर ये क्या मामला हुआ? उन्होंने कहा भी वो तो कसम उठाने लगा था कुरान की, तो इसका मतलब है कि मैं अपने कॉल और फेल और लेन देन में इतना ही सच्चा हूं जितना जैसा कि कुरान सच्चा है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो अपने कॉल और फेल में, किरदार में कुरान की तरह सच्चा हो, नहीं हो सकता। लिहाजा ये कसम झूठी हो जाती, और उठाने वाला भी और उठवाने वाला भी दोनों ही गलत हो जाते, गुनाह के मुर्तकब हो जाते। तो मैं ये कैसे देख सकता था? लिहाजा मैंने उसे रोक दिया, जो उनका डिस्प्यूट था वो मैंने पे कर दिया, ताकि उनकी बात, उनका केस खत्म हो जाए। मेरे पास आए हैं तो दोनों पार्टियां खुश चली जाएं, दोनों राजी चले जाएं। दोनों चले गए, लेकिन कसम नहीं उठाने दी, और आगे के लिए रिजाइन इसलिए कर दिया कि यही अदालतों का, काजी खानों का यही असूल है कि वो कुरान पर कसम लेते हैं। अब देख लें, आजकल के मौजूदा दौर में भी यही कुछ होता है। कोई अगर मुसलमान चला जाए अदालत में तो पूछते हैं, मुसलमान हो? हाँ जी, लाओ जी कुरान लाओ जी, ओथ लो जी, कसम उठाओ जी, हाथ रख कर इस पर कहो कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। हाय, क्या वाकई ये कुरान हम पर उतरा, रवील हुआ इसलिए कि हम इसकी कस्में उठाएं? नहीं नहीं, कुरान तो हम पर उतरा कि हम इसको पढ़ें, इसको समझें और इस पर अमल करें। ये कुरान इसलिए है, इसलिए नहीं है कि हम इसकी कस्में उठाएं, इसलिए नहीं है कि इसको हम अच्छी तरह किसी गिलाफ में लपेट कर तय करके किसी ऊंची जगह रख दें। खैर व बरकत के लिए घर में कुरान रखा हुआ है जी हमने, लेकिन कभी खोला ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी उसको समझा ही नहीं, कभी उस पर अमल ही नहीं किया। खुदारा ये बहुत बड़ा नुकसान है उम्मत मुसलमा का। इतना बड़ा खजाना, इतनी बड़ी दौलत, इतना इतना विजडम जिस किताब से, मुकद्दस किताब से, ग्लोरी कुरान से मिल सकता है, हमने उसको कस्में उठाने के लिए रखा हुआ है। हमने उसको खैर बरकत के लिए, ब्लेसिंग के लिए घर में रखा हुआ है। हम उसको पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई जो कुरान पढ़ते हैं, अरबिक में पढ़ते हैं। चलो उनकी मादरी जुबान अरबिक नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन कभी तर्जुमा पढ़ा ही नहीं, कभी उसकी तफसीर पढ़ी नहीं, उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। बहुत सवाब है, याद रखिएगा, कुरान को पढ़ना, कुरान की तिलावत करना बहुत सवाब है, बड़ा अजर है उसमें। लेकिन अगर वही कुरान, वही वर्ष, वही आयत मुबारका आपने तर्जमे के साथ पढ़ ली, भाई अरबी में तो तिलावत की, साथ तर्जमा किया, तर्जमा पढ़ा उसका, साथ उसकी तफसीर पर भी नजर डाली, और फिर वो जो कलाम था, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो जो कमांडमेंट थी, उस पर अमल शुरू कर दिया, उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लिया। ये सबसे बड़ी कामयाबी है आपकी, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। ये पढ़ लेने से कई गुना ज्यादा अफजल है आपके लिए कि आपने ना सिर्फ कुरान को पढ़ा, कुरान को समझा, और फिर उसको अपनी प्रैक्टिस में आपने अमल में लेकर आए, उस पर अमल किया। खुदारा जब आप कुरान पढ़ें तर्जुमे के साथ, आपको लगता है ये आयत मुबारका अभी रिवील हुई है मेरे लिए, अभी मुझे समझ आई है इसकी, और ये ऐसे लगता है जैसे ये मेरे लिए आई है, मेरे हालात और मामलात इसमें डिस्कस हो रहे हैं, मेरे हालात और मामलात का सलूशन मुझे इधर से मिल रहा है। ये कैफियत होती है फिर,
ये मैं अपनी कैफियत बता रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। कसमें उठाने के लिए नहीं है। आप कोर्ट में जाएं, अदालत में जाएं, वो आगे कुरान रख दें, उन्हें साफ कह दो जज साहब को, उनको भाई मैं मुसलमान हूँ, एक सच्चा मुसलमान हूँ, मैं यहाँ गवाही देने या अपना स्टेटमेंट देने आया हूँ, कुरान मैंने नहीं उठाना। बात पर यकीन करना है कर लो, नहीं तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज योर बिजनेस। आप मुझे सच्चा जानो या झूठा जानो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कुरान इसलिए नहीं है कि मैं इसकी कस्में उठाऊं। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, मैं हल्फ लेता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, लेकिन कुरान पर हाथ रखकर या अल्लाह की कसम खाकर नहीं मेरे भाई। मेरा रब और मेरा कुरान और मेरा ईमान इसलिए नहीं है कि मैं इस बात की दलीलें देता फिरूं कि मैं सच्चा हूं रब की तरह और मैं सच्चा हूं कुरान की तरह। नहीं, मैं नहीं हूं, मैं हो भी नहीं सकता। जिस तरह कुरान अपनी कदर मंजिलत में सच्चाई की इंतहा पर है, कोई उसकी जगह नहीं हो सकता, कोई उस तरह सच्चा नहीं हो सकता। लिहाजा हम लोग कमजोर हैं। दोबारा कुरान की कस्में उठाना, अल्लाह की कस्में उठाना 1001 बार सोचा करें, बार बार सोचा करें, और हर बार अपने आप को यही समझाएं कि नहीं भी नहीं, कसम नहीं उठानी। बच्चे बाज़ औक़ात ऐसे ही बातें करते हुए आपस में कहते हैं, वो बात की तो उनका अच्छा ऐसे हुआ था, आप कसम खाओ। वो कौन कहता है हाँ हाँ अल्लाह की कसम। तालीमात करें उनको, उनकी तरबियत करें कि नहीं भाई बच्चे कसम नहीं उठाते। अगर आपके सामने जो प्यार से समझाएं, या बचपन में थोड़ी थोड़ी बातें समझाते रहेंगे तो इंशाल्लाह बड़े होकर उनको सारी बातों की समझ होगी। नहीं जी, वक्त थोड़ा रह गया, इस बात पर बहुत तफसील से बात हो सकती है, लेकिन असल मौक़दा यह है कि खुदारा कसमें ना उठाया करें। कसम उठा के माल बेचना उससे ना बिके बेहतर है। लेकिन मैंने माल बेच के पैसे तो जेब में डाल लिए, लेकिन ईमान हाथ से चला गया, ईमान मेरे अंदर से निकल के चला गया। एहतियात करें। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सल्ली अला या रब्बुल आलमीन या मालिकुल कुद्दूस। अल्लाह हमारी गलतियां खताएं माफ़ फरमा दे, हमारी कोताहियां सुस्तियां बेअदबियां माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। आज तक जो भी ज़िंदगी में कस्में उठाई, अल्लाह अपने करम से माफ़ फरमा दे। यकीनन तो अपनी ज़ात में सच्चा है, यकीनन तेरा कलाम कुरान पाक बहुत अज़मत वाला सच्चा कलाम है। अल्लाह जाने अनजाने में भूले से भी कभी कसम खाई हो, कसम उठाई हो, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी में कसम से बचे रहें, कसम ना उठाएं। या अल्लाह तू हमारी मदद अता फरमा, हमारी रहनुमाई अता फरमा। अल्लाह हमें अपने कौल और फ़ेल में इतना सच्चा कर दे कि हमें कभी कसम उठाने की या कसम खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अल्लाह हमें हक और सच पर इस्तकामत अता फरमा, हमें दीन इस्लाम पर इस्तकामत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, ज़िक्र व फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अपना फ़क्र, अपना तवक्कल, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। तौबा करते हैं, सच्ची करके कबूल फरमा। दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। ज़मीन और आसमान में मौजूद हर चीज़ के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमान और पनाह अता फरमा। अल्लाह जितनी भी ज़िंदगी है तेरी बारगाह में क़याम और रुकू और सजदे करते गुजरे, ऐसी तौफीक अता फरमा। बेशक तू ही इस शान के लायक है कि तेरी इबादत की जाए। अल्लाह हमें इबादत की हलावत अता फरमा, इबादत के लिए हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमा। अच्छी और आला इबादत के लिए अल्लाह हमें फहम और समझ बूझ अता फरमा, विजडम अता फरमा। अल्लाह
ہم تیرے مقرب بندے بن کر جینا چاہتے ہیں، ایسا کرم عطا فرما دے، ایسا کرم عطا فرما دے کہ ہمارا ایمان صادقین جیسا ایمان ہو، ہمارے اعمال صالحین جیسے اعمال ہوں، اور اللہ ہمارا مال کیا، ہماری جانیں کیا، تجھ پر، تیرے محبوب پر، تیرے پسندیدہ دین پر قربان ہو جائے، ایسا کرم عطا فرما۔ اللہ جتنی بھی زندگی ہے استقامت والی ہو، کلمے اور ایمان پر ہمیں موت آئے، ایسا کرم عطا فرما۔ ہمارے آباء و اجداد کے، ہماری اولادوں کے، آنے والی نسلوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، کل امت مسلمہ کی معافی عام فرما دے۔ اللہ پوری دنیا کی انسانیت پر اپنا کرم عطا فرما۔ یہ جو وحشت، اضطراب، یہ جو خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، اللہ اپنے کرم سے ٹھنڈا کر دے، دور کر دے، خصوصاً امت مسلمہ کے لیے، بالعموم پوری دنیا کی انسانیت کے لیے دعا گو ہیں، اللہ اپنا رحم عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما، مسلمانوں کی املاک کی عزت و شرموں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرما، اس پر عمل کرنے کے لیے جو ہمت، طاقت اور توفیق چاہیے وہ اپنی بارگاہ سے، اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے عطا فرما دے۔ ہم پر رحم فرما، ہمارے مشائخ، اساتذہ اور والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ جس ولی کامل نے، مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ حضور میاں صاحب مبارک کو عمر خضری عطا فرما۔ حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما دے۔ ان ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، ان کی دعاؤں سے ہمیں پورا حصہ عطا فرما، ان کی فیض و برکات سے سدا مستفید ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی میرے ساتھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں یا بعد میں اس کو ریکارڈنگ کی شکل میں سن رہے ہیں، اللہ سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما دے، سب کی نیک حاجات، سب کی نیک تمنائیں، ضرورتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے۔ کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی دور کر دے، کوئی تنگ دست ہے، مفلسی میں ہے، اللہ اس کی مفلسی دور کر دے، مقروض ہے، قرضوں سے خلاصی دے دے، بیمار ہے، شفاؤں میں بدل دے، دائمی شفا عطا فرما۔ اللہ جو مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان اسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہے، سب کو شفا عطا فرما، شفائے کلی، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا جن کا ہم پر حق ہے، ہماری تمام دعائیں ان کے حق میں بھی قبول و مقبول فرما۔ بہت سارے ساتھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، سب کے نام لینا، ایک ایک کہہ کے دعا کرنا، یا اللہ میرے لیے مشکل ہے لیکن تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تو عالم الغائب ہے، مسبب الاسباب ہے، اللہ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، سب کے گھروں میں اطمینان اور سکون عطا فرما، سب کے ظاہر و باطن میں خیر اور برکت رکھ دے، ہم سب کو دنیا و آخرت کی خیر، بھلائی اور کامیابی عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ اپنا کرم عطا فرما، جو بچے حصول علم میں لگے ہوئے ہیں ان کو دین و دنیا کے بہترین علوم عطا فرما، جو بچے قرآن پاک کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، اللہ ان بچوں کو بہت سارا عروج اور بلندیاں عطا فرما۔ انڈیا میں جتنی بھی فیملیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، یا اللہ سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ کینیڈا میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں، پاکستان میں، جہاں جہاں سے بھی لوگ ہمارے ساتھ یہ آن لائن محفل میں شامل ہوتے ہیں، سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ بہت سارے لوگ یہ ویڈیوز بعد میں شیئر کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، جہاں کہیں بھی کوئی بیٹھا ہے، جہاں کہیں بھی جس وقت اور جس معاملے میں، جس ملک میں، جس جگہ پر بھی، جس وقت میں بھی وہ یہ دیکھ رہا ہے، ہماری دعا میں شامل ہے، اللہ ہماری دعاؤں میں سے پورا حصہ عطا فرما۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا، آتینا محبت ذاتک و معرفت صفاتک، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
आमीन सल्लल्लाहु ताला। आप सबको आज की महफिल बहुत बहुत मुबारक हो, और जो भी तालीमात आप लिया करें, कोशिश किया करें कि उसकी प्रैक्टिस किया करें, उस पर अमल किया करें। इंशाल्लाह ये सारी बातें, ये सारी तालीमात आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। ये इल्म वो इल्म है जो इंशाल्लाह फिर नाफ़े हो जाएगा, फ़ायदेमंद हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको इस इल्म को सीखना होगा, समझना होगा, उस पर अमल करना होगा। इंशाल्लाह ताला आप में भी, आपकी फैमिली में भी, आपके बच्चों में भी, औलादों में भी खैर और बरकत का हसूल होगा। अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे। आइंदा वीक तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।